नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वणकम, शलोम। चाइनीज में नहीं आओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी प्लीज। Abariyako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And so the Olympics are coming to an end. Yes. We've already got 7 medals. Yes. No gold, I'm afraid. And no gold is going to come either, because today the last our last girl, Ritika Huda, I think she just lost to the world number 1 wrestler in the quarterfinals. She may get a chance at a bronze medal if the wrestler who defeated her, the one from Kyrgyzstan, reaches the final. Then in repechage, she will have a chance at reaching the semi-finals. There is a possibility. One never knows. But no gold. Gold medal नहीं आएगा सर इस बार. So very sadly, Pradeep ji, no medal at all from badminton this time. Badminton से कोई medal नहीं आया. आर्चरी से कोई मेडल नहीं आया. मेडल्स जो आए हैं 3 शूटिंग से मेडल आए हैं. आई थिंक दैट्स बीन अ ग्रेट थिंग. वी गॉट मेडल्स इन शूटिंग एंड विनेश फोगाट्स decision likely to come after 9:30 p.m. tonight. But Badminton, we have not replaced our aging warriors. yes, I know. And it's time that shows we are lacking somewhere in having लेकिन एक चीज the सर, replacement इस बार of क्या these था कि giants that we had. लक्ष्य सेन से हम लोगों को बहुत उम्मीद थी. But then he's like that. He's a bit erratic. वो क्या है कि वो either he's brilliant or he just gives up. That's exactly what Prakash Padukone said. He said that he was leading even in the semi-finals against the player who actually eventually won the gold medal. He was leading against Victor Axelsen of Denmark. Now, if only he had kept up that pressure, he was leading 7-0, I remember. And then, God knows what happened. So is the case for the losing semi-finalist for the bronze. Again, he won the first game and then lost the next 2 games. So there's something is there. And do remember, Lakshya Sen is the London Open champion. So it's not as if he's not a talented player. He's one of the best players in the world. So, but something happens to him. There's something psychological there. I think that you need to work on. Like our doubles pair of Ranki Reddy and Shetty. They are the Thomas Cup champions. Thomas Cup is like the World Cup of badminton. It is. And somehow or the other, they were not able to replicate that form in the Olympics. So we really need to work on why is it that even in the World Championships, for example, our archers are able to win gold medals here, there and everywhere. And we are not able to replicate that form in the Olympics. So You we need really to work on the mental faculty. That's right. और यहाँ पर मैं ये मान करके चलता हूँ कि सरकार ने, स्पेशली मोदी जी के आने के बाद, जो फैसिलिटीज आज की तारीख में एथलीट्स को दिए हैं, सर, इट इज सेकंड टू नन. यू कैन नॉट कंप्लेन कि हमारा इक्विपमेंट खराब है, ये खराब है, वो खराब है. यू कैन नॉट डू दैट एट ऑल. द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट आवर एथलीट्स आर गेटिंग आर एज गुड एज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आर गेटिंग. सो देयर इज समथिंग. So now the athletes have to deliver. Let's be very clear. Now it's up to them. There's no excuse that you don't have a proper infrastructure, and we are way beyond the best. We have got the best infrastructure. In fact, Pakistan's Arshad Nadeem. He got only 3 lakhs as an award from the सरकार की तरफ से. हमारे अरे साहब वो छोड़िए, उसके बाद जैवलिन तक नहीं था. जैवलिन तक नहीं था. जैवलिन भी क्राउड फंडिंग के बाद उसने खरीदा, जिसमें नीरज चोपड़ा was one of the contributors. Exactly sir. मतलब मेरा ये कहना है कि अगर वो लड़का गांव के अंदर प्रैक्टिस करके गोल्ड मेडल जीत सकता है, तो हम लोगों को क्या है भाई, इसका मतलब ये हुआ डेडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सीधी सादी बात है. मतलब मेरा ये मानना है. आप ये नहीं कह सकते कि यू कांट ब्लेम द एथलीट्स. आई डू ब्लेम द एथलीट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, इवन इन द केस ऑफ विनेश फोगाट, आप जो मर्जी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए. जैसे प्रदीप जी आप कह रहे हैं, दिस इज द 3rd ओलंपिक्स, तीसरी ओलंपिक्स है. अगर आप 2 किलो आपका वेट ज्यादा है, तो आपको ये वर्कआउट करना है कि किस तरीके से you will come down below 50 kilograms. Of course, exactly. I would, you would check. I would check myself. I would check Everybody myself does. every hour. अरे look at that boy. अरे प्रदीप जी, look at that boy, Aman Sehrawat. Yes.
वो 3 बाउट खेला, उसका वेट जो है 4.5 किलो बढ़ गया। Yes. एक रात में उसने 4.5 किलो कम किया है। अगर अमन सहरावत 4.5 किलो कम कर सकता है तो विनेश फोगाट जो है वो 2 किलो 200 ग्राम कम क्यों नहीं कर सकते? Exactly. सीधी सादी बात है। तो you can't just say that the athletes are not to blame. They are. No, the player cannot blame the coach also. You can't. have to be yourself responsible Yes, for that's your it. actions. Absolutely. Now PV Sindhu can't get up and say, "Hey, listen, I lost because of my coach." You got to be kidding me. You can't do that. You were the person on that court. You were on that court and you lost. Let's be very clear. After winning the first set, she won the first set, lost the next two. Who's responsible for that? Because you are the person right there. Look at somebody like Manu Bhakar. As she says, "Listen, I can only try my best, and I'm trying my best, and I'm grateful to everybody." That's it. That's it. That's it. That's the end. Self-regulation However, is the most important thing. लेकिन मेरी एक और ऑब्जेक्शन है साहब, हम 140 करोड़ का देश नहीं है, आज 150 करोड़ के ऊपर है हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या जो है वो 150 करोड़ के ऊपर है, और हम खुश हो रहे हैं सिर्फ 7 मेडल लेकर के। मतलब हद होती है भाई, हद होती है यार। ऑस्ट्रेलिया को देखिए 20 गोल्ड मेडल, अमेरिका को देखिए, चाइना को देखिए। आज हमारा कंपटीशन चाइना के साथ होना चाहिए, और लिस्ट में अगर आप मेडल टैली की लिस्ट देखेंगे उसमें पाकिस्तान का नाम हिंदुस्तान से ऊपर है, बिकॉज दे वन 1 गोल्ड, वी हैव नॉट वन इवन 1 गोल्ड। नाउ कम ऑन, दिस इज स्टूपिड। 150 करोड़ पीपल एंड वी कांट गेट इवन 15 गोल्ड मेडल्स। 15 गोल्ड मेडल तो मतलब जीतने चाहिए आज हमें इन एन इवेंट। वील टॉक अबाउट दैट एट सम ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट टू नन, वी शुड बी द नंबर 1. We should be number 1. I mean, मोदी just जी come विकसित on. भारत के बात करें, सपने देख रहे तो एवरीबॉडी शुड, हर व्यक्ति से विकसित भारत के सपने देखना चाहिए। प्रदीप जी, मेरा ये कहना है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि आज हमारा कंपटीशन अमेरिका और चाइना के साथ होना चाहिए। वी शुड बी देयर अमंग द टॉप 3, टॉप 1 2 3। मतलब लेकिन ये जब हद तक होती स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट संकल्प नहीं लेंगे तब तक होगा नहीं जी। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे जिंदल साहब बता रहे थे कल, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, जीएसडब्ल्यू वाले जो हैं, जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स जो है, जिंदल स्टील वर्क स्पोर्ट्स, दे आर द स्पॉन्सर्स ऑफ द ओलंपिक टीम। वो बता रहे थे कि भाई अमेरिका में आप देखिए एक कल्चर है, हर वीकेंड पे आप जितने भी पेरेंट्स हैं वो ये बोलते हैं, वो क्या प्लान करते हैं कि आज मेरे बच्चे का फुटबॉल मैच है, आज बास्केटबॉल का मैच है, आज एथलेटिक्स का मैच है, मैं वो देखने जा रहा हूं या मैं वो देखने जा रही हूं, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे। वो कल्चर है। जब तक वो कल्चर हिंदुस्तान में नहीं आएगा कुछ नहीं होने वाला। हमारे यहाँ पे क्या है, 2 थप्पड़ मार करके बच्चे को बोलते हैं पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पढ़ाई कीजिए, होमवर्क किया कि नहीं किया। अरे फिर आप गोल्ड मेडल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सारे के सारे मेडल तो आपके 90% हरियाणा से आ रहे हैं, एक ही स्टेट से आ रहे हैं। हद होती है यार, मतलब। और होमवर्क तो क्लास फिजिकल क्लासेस से भी ज्यादा होमवर्क होता है, घर आके ज्यादा काम करना पड़ता है, घर आके ज्यादा काम करना पड़ता है। जब तक वो कल्चर नहीं बदलेगा हम लोगों का, हिंदुस्तान में टैलेंट कभी नहीं है। हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी उस टैलेंट के लिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में जाएं। सीधी सादी बात है। और कितने एथलीट भेजे? सिर्फ 117। अरे सर, अमेरिका ने 650 भेजे हैं। वी शुड हैव सेंट एटलीस्ट 700। इसका मतलब ये हुआ कि कई ऐसे खेल हैं जिसके अंदर हम लोग हैं ही नहीं। वहां पर वी मस्ट क्वालिफाई, वी मस्ट वर्क वेरी वेरी हार्ड। Why is our football team so so terrible? When Rajiv Gandhi was there, we sent the biggest contingent. Yes, and we got 1 medal. Or none medal. No, we got 1 medal. Karnam Maleswari, weightlifter from Manipur, she got a bronze medal. एक medal आया था सर. Right, let's go across. We've got 2 very very important guests indeed. And the sports thing, by the way, if I get started off with this, I won't stop. ये सब्जेक्ट जो है मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो क्या होगा कि बस इसी के ऊपर बात होती रहेगी और किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं होगी। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से शैलेश पांडे साहब और कांग्रेस से धनंजय जुनकर साहब। संजय पांडे साहब नमस्कार। नमस्कार। शैलेश पांडे साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। शैलेश पांडे साहब कैसे हैं? सब खैरियत है? आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम। धनंजय जुनकर साहब आपको भी हर हर महादेव, जय सिया राम। नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम सर। आप दोनों को श्रावण की बहुत 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 शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में श्रावण चल रहा है सर। बहुत बढ़िया। आपको सभी को शुभकामनाएं। सारी मनोकामना पूर्ण करे राजीव जी। जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। त्र्यंबकम यदामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय।
शैलेश पांडे जी, सबसे पहले आप, क्योंकि आप गाड़ी में, इसलिए पता नहीं कब आपका नेटवर्क चला जाए मुझे मालूम नहीं। तो शैलेश पांडे साहब, आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड को लेकर के बड़ी भूहा मच गई हर जगह पे। ये क्या है? ये एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों के खिलाफ है, आपको और कुछ सूझता नहीं है, बीजेपी को सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं। सर, क्या ये मुसलमान विरोधी है? जो वक्फ बोर्ड में आप जो संशोधन करना चाह रहे हैं, क्या ये मुसलमान विरोधी है? शैलेश पांडे जी बोलिए सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजीव जी, आपने और आज सारे देश ने देखा होगा जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर देश के विविध अलग अलग क्षेत्रों के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक संगठनाएं हैं, उन संगठनाओं ने भी जाकर मोदी जी से भेंट की है। यहाँ तक कि जो मंत्री परिषद है हमारी, उनसे भेंट की है। किरण रिजिजू जी जो संसदीय हमारे मंत्री हैं, उनसे भेंट की है और उन्होंने ये मांग की है और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया है मोदी सरकार का कि वो जो वक्फ बोर्ड के ये विषय में जो ये विषय लेकर आए हैं और इस विषय को बड़ी ही संजीदगी से इसको जेसीपी कमेटी के पास दिया गया है, ताकि इसके अंदर जो खामियां हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत बड़ी खामियां हैं। आज मुझे बताइए, भारतीय सेना की, भारतीय रेलवे की इतनी बहुत सारी जमीनें जो कि सरकार के पास होनी चाहिए थे, उस पर भी वक्फ बोर्ड का, अभी हाल ही में मैंने एक खबर देखी थी, तमिलनाडु में एक सारा का सारा गांव और जहां की भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा मंदिर था, उस मंदिर का भी अधिग्रहण करने के लिए वक्फ बोर्ड आकर खड़ी हो गई। मतलब जिस भी प्रॉपर्टी पर चाहे उंगली रखते, और इस तरह का कानून कांग्रेस शासित राज्यों में बनाया गया था कि वक्फ बोर्ड जहां उंगली रखेगी वो जमीन उनकी। तो ये जो अनियमितता है, अपारदर्शिता है, इस अपारदर्शिता को पारदर्शिता में बदलना, उसमें जो खामियां हैं उस खामियों को ठीक करके, सुधार करके वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो देश के लिए और समाज के लिए और मुस्लिम तो समाज कहने का मतलब ये हुआ शैलेश पांडे मिले। जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो कर रहे हैं, जैसा कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगाई, आरोप तो ठीक है, आपकी नजर इसका मतलब वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, जो 9 लाख एकड़ के करीब जमीन है उनकी, वो आप हथियाना चाह रहे हैं। नजर में क्या है? मतलब क्या नजर में है? 8,70,000 प्रॉपर्टीज है शैलेश पांडे जी। बोले ये राष्ट्र एक है। 8,70,000 बोलिए। ये राष्ट्र, सुनिए जी बोलिए, राजीव जी, बोलिए सर। ये राष्ट्र एक है, ये राष्ट्र एक है और हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा से हम काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के विचारधारा से काम कर रहे हैं जी। आज वक्फ बोर्ड की भूमि को कुछ पुराने भू माफियाओं ने जिस तरह से उस पर अपना अटैचमेंट, इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं, आज वो जनमानस के काम में नहीं आ रहा है। मुस्लिम समाज के जो छोटे छोटे तबके हैं और अन्य समाज के लोग हैं, उनको वो काम में नहीं आ रहा है और उसकी सुरक्षा रक्षा करने का दायित्व भी तो सरकार का बनता है और सरकार नहीं कोई भी काम पारदर्शिता से करेगी, संजीदगी से करेगी, कोई न्याय सही नहीं। जी। और आज हमारी सरकार है और मोदी जी पर पूरे देश को ही नहीं दुनिया का विश्वास है, क्योंकि वो विश्व नेता है और हम अब किसी भी प्रकार की अनीतिपूर्वक काम नहीं होने देंगे। वक्फ बोर्ड की अनीतियों को खत्म करेंगे और उसमें नीतिगत देश हित, राष्ट्र हित में हमारी ये भूमिका है और राष्ट्र हित के लिए वो काम होगा। तो और वो सारी पारदर्शिता से काम कर माशाल्लाह। तो धनंजय जुनेकर साहब, आप तो एडवोकेट भी हैं, आपको क्या आपत्ति हो सकती है? जैसा अभी शैलेश पांडे जी ने बताया कि वो तो कोई भू माफिया है, भू माफिया ही नहीं है, माफिया है सर, बहुत बड़ा माफिया है वक्फ बोर्ड का। वो कोई भी चीज देखते हो बोलते हैं तो हमारा है, आ जाओ। तो मतलब उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उंगली रख दी थी, ताजमहल इनका है जी, कल को बोलेंगे दिल्ली का सांसद इनका है, सारी विधानसभा इनकी है, मंदिरों पे कब्जा करने सर कुछ भी हो सकता है। शैलेश पांडे जी, कुछ भी हो सकता है। धनंजय जुनेकर साहब, आप बताएं। तो इस पे एक बार जुनेकर साहब को बोलने दें सर। हमें तो न्याय देना है ना सर। इसका मैं दो प्रकार से इंटरप्रिटेशन इसका मैं करना चाहूंगा सर। बोलिए सर। एक तो पहले है कि कोई भी चीज में संशोधन लाना ये कोई में बुरी बात नहीं है, और वक्फ बोर्ड हो या और कोई भी चीज हो, उसके ऊपर अगर कोई गलती है उसके अंदर और उसको कुछ दुरुस्त आपको करना है, तो बिल्कुल सभी पार्टियों को विश्वास में लेके और उसके स्कॉलर्स को विश्वास में लेके अगर कोई चीज आप लाते हो, आप कोई चीज नहीं करते हो, तो उसमें कोई विरोध की बात नहीं है।
तो पर लेकिन दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि 9 लाख एकड़ की जो जमीन है, अभी देश में जमीन बची ही नहीं है। एक आर्मी के पास और रेलवे के पास जो जमीन है, उसके बाद तीसरा नंबर वक्फ बोर्ड का लगता है। तो अभी मोदी जी के जो उद्योगपति मित्र है, उनको काम करने के लिए उनके अलग अलग प्रकार के बिजनेस के लिए जमीन की जरूरत है। तो इतने बड़े स्केल की जमीन अगर ढूंढो देश में आप, तो वक्फ बोर्ड ही लास्ट में बचा है जिसके ऊपर आप अटैक करके वहां से जमीन रिलीज करके उद्योगपति मित्रों का भला कैसे हो सकता है, ये देखने के लिए इन्होंने कोशिश की। लेकिन अल्पमत में होने के कारण ये विधेयक ये लोग पास नहीं कर सके। अगर इनको इतना ही ज्यादा दर्द इस चीज का था, वक्फ बोर्ड के अंदर की तकलीफों का और दुरुस्तियों का, तो गए 10 साल में इन्होंने काफी ऐसी चीजें थी कि 100 150 एमपी इन्होंने एक सेकंड में संसद के बाहर किए, विधायक निलंबित कर दिए और उन्होंने अपना अपना बिल पास कर दिया। तो ये भी बिल वो पास कर सकते थे, तो ये बिल क्यों बचा के रखा था 10 साल के बाद, आज ही इनको तकलीफ क्यों हुई, ये भी बात मैं जानना चाहता हूँ। जुनेकर साहब, ये रिफॉर्म जरूरी क्यों, आपको नहीं लगता जरूरी है रिफॉर्म्स? रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कैन डिक्लेयर नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टी एज योर ओन प्रॉपर्टी। नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। अभी एक कोई हिंदू प्रॉपर्टी है, उसमें अगर मुस्लिम सेटलमेंट है, वक्फ बोर्ड को अगर वो विकीत करते हैं, वो दे देते हैं कि वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करते हैं, तो ओनरशिप उनका नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज में यह तकलीफ है। तो अगर रिफॉर्म्स ला रहे हैं उसमें तकलीफ है जुनेकर साहब? कोई तकलीफ नहीं सर, मैंने पहले लाइन में बता दिया कि कोई तकलीफ नहीं है। रिफॉर्म हमेशा हर सरकार आती है, वो तो कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है और सबको मिलके करना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपने मन से रातों रात एक दो आदमी बैठ के कुछ नया चीज करते हैं और विधेयक लेके आ जाते हैं। इस प्रकार से देश नहीं चलेगा। अगर आपको विश्वास, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको विश्वास में लेके सबको चलना पड़ेगा और बिल्कुल जो चीजें गलत है उसको दुरुस्त करना चाहिए और संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। पांडे जी, शैलेश पांडे जी, उनके पास वक्फ के आज के कानून में इनबिल्ट मैकेनिज्म है, इनबिल्ट सर्वे है। ऐसे कोई आप जो कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टी पूरे वक्फ बोर्ड टेक ओवर करते हैं, मगर वक्फ बोर्ड के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म है इस चीज को रोकना। सर्वे आज तक करते हैं, हर चीज है, तो उसको सिर्फ एक्टिवेट करना है। और जिनके आरोप है कांग्रेस का, अगर बीजेपी से करप्शन हो तो करप्शन को हैंडल कीजिए आप। रिफॉर्म्स 40 अमेंडमेंट लाना क्यों चाहते हो पांडे जी? देखिए नाम्बियर जी, पहली बात तो धनंजय जी ने कहा कि रातों रात लाया, तो कोई भी विषय संसद में आता है वो रातों रात नहीं लाया जाता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, उन सांसदों ने पहले ये विषय पत्र के माध्यम से संसद में लाया था। उसके बाद कई कमेटियों में इसकी चर्चा हुई थी, फिर ये विषय संसद में लाया और संसद में लाने के बाद मैं तो बहुत खुश हुई इस बात से कि संसद में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने वक्फ बोर्ड के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दी, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अन्य इंडी अलायंस के सांसदों ने, प्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। देश की जनता ने उसको देखा है, समझा है। जिस तरह से एक मौलाना चीख चीख कर रहे थे कि अब आने वाले समय में वो बांग्लादेश की तरफ उंगली उठा रहे थे कि हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा, हिंदुस्तान में हम सड़क पर उतरेंगे, हिंदुस्तान में हम आग लगा देंगे। ये जिनकी जो नीति और नियति है, इनका जो कमीनापन है, ये कमीनापन इस देश की जनता ने खुले आंखों से देखा है। और ध्यान रखिए, इस देश के अंदर अब किसी ऐरे गैरे की सरकार नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री एक लौह पुरुष प्रधानमंत्री है और वो किसी भी ऐरे गैरे की बात सुनेगा नहीं और किसी भी प्रकार के किसी भी के दबाव में आए बिना निडर होकर, निर्भीक होकर और पूरे कठोरता के साथ, पूरे पारदर्शिता के साथ इस वक्फ बोर्ड के इस जो माफियागिरी है, इस माफियागिरी को खत्म करके हम न्यायप्रिय काम करेंगे। और पांडे जी, देश है ये देश की भूमि है। देश के अंदर कोई भी बोर्ड हो, कोई इनका कोई क्या ये आयोग है क्या? कोई इनका क्या कोई ये राजा महाराजा है क्या?
तो ये के देश का लेकिन संविधानिक सर हर वक्फ बोर्ड तो माइनॉरिटी मिनिस्टर कोई के भी अंदर होता जमीन है है। वो पहले देश की है, देश के हित के लिए है, और देश के हित में सेना ने अपनी जमीन दी है, रेलवे ने अपनी जमीन दी है, सरकार की विविध विधाओं की, विविध अलग अलग क्षेत्रों की शैलेश पांडे अनुसंधान जी, जमीनें भी देश के राष्ट्र के हित में लगाई गई है। शैलेश तो पांडे बहुत कौन सी जी। चीज है? और हम तो इनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहते हैं। लगाइए और इनके सर, जरूर लगाइए। सब लोग कार्रवाई करना सब चाहते हैं। लोग आपका समर्थन करेंगे, सब लोग आपका और ये- समर्थन करेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड में भी आईएएस ऑफिसर बैठता है। वक्फ बोर्ड भी जो होता है वो रिपोर्ट करता है माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर को, यानी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वक्फ बोर्ड कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है सर। तो प्रदीप जी ने जो आपसे सवाल पूछा था वो ये था कि करप्शन को खत्म कीजिए ना, ये अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या है? अब आप बताएं शैलेश पांडे जी। उसी लिए हमने उसमें संशोधन कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट एक अलग कमेटी कोई भी डिसीजन लेती थी वो ना लेके जो संवैधानिक हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारी हैं, जिसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को, उसको भी हम अब अधिकार देने वाले हैं, ताकि ये सारी चीजें संवैधानिक जो अधिकारी हैं इस देश के राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, उनके जानकारी में, उनके निगरानी में पारदर्शिता से पूरी ये कार्य हो और सजगता से कार्य हो, इसके लिए हम सचेत रूप से, सर वो तो पहले से ही है भूमिका है। सर वो तो पहले से ही है, उसमें नई बात क्या है? नहीं, अभी वो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की भूमिकाओं को बढ़ाया जा रहा है, जो नई संशोधन हो रहा है। राइट। बट पांडे जी, राहुल गांधी जी का जरूर प्रभाव पड़ा है, नहीं तो आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्पेशल कमेटी के पास इसको बिल को भेजता नहीं, जैसे जोनकर साहब कह रहे थे। राहुल गांधी जी ने आप पे आरोप लगाया था कि वॉइस वोट से मैं कोई भी बिल पास होने नहीं दूंगा, डिबेट और डिस्कशन होगा ही होगा। राहुल गांधी जी ने आंकड़ा निकाला था 25% बिल पिछले 10 साल में आपने 1 घंटे के अंदर पास किया था पार्लियामेंट में, जो डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। डिबेट डिस्कशन होना एब्सोल्युटली होना चाहिए। और फार्म लॉज भी 3 काले कानून भी ऐसे आप घुसा के लेके आए थे, फटाफट वॉइस वोट में पास कर दिया विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन, वापस आपको लेना पड़ा। क्या राहुल गांधी जी का इफेक्ट पड़ा है पांडे जी? प्रदीप जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसके पहले भी जो सारे बिल लाए थे, वो बिल देश के हित में लाए थे, राष्ट्र के हित में लाए थे। और जो भी बिल लाने में प्रक्रिया हुई, वो सारी की सारी प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढंग से हुई है, क्योंकि हमारा ये देश जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हम हमारे लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। और हम जो भी काम किए हैं, हम एक सिद्धांत, नीति और लोकतांत्रिक विचारधारा को बरकरार रखते हुए हमने ये काम किया है। और मैं ये पूछता हूँ, धारा 370 हमने लाई तो हमने क्या वो गलत किया? हमने और आपने लाई नहीं, आपने हटाई। महिला सशक्तिकरण बिल, नारी अधिनियम बिल लाया तो हमने क्या गलत किया? फूड बिल लाया तो हमने क्या गलत किया? नहीं, हमने कौन सा बिल गलत लाया जिसके लिए हाय तौबा मचा रहे हैं? और देखिए, मैं इतना जरूर जो 3 है, मैं इतना सुनिए मेरी बात सुनिए। किसान कानून जो थे आपको वापस लेने पड़े सर, बोलिए सर। तो देखिए जी, जो सही नेता होता है, वो राष्ट्र नेता होता है, वो जनता के भावनाओं को भी समझता है। कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि कभी किसी बीमारी में कड़वी दवाई मरीज को नहीं पसंद होती है। हमने तो मरीज को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई देने की कोशिश की थी, वो बिल, किसान बिल, ठीक है, नहीं पसंद है, लेकिन हम जनता को जनार्दन कहते हैं, इसलिए हम जनता की भावनाओं का आदर करते हुए हमने वो बिल को वापस लिया। लेकिन ठीक है, जब समय में बदलाव आएगा, लोगों की सोच में बदलाव आएगा, हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, हम उनको कन्विंस करेंगे, और उसके बाद फिर हम ये जो भी बातें हैं हम फिर से जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और मुझे डिबेट एंड डिस्कशन, जुनरकर साहब, डिबेट एंड डिस्कशन हर बिल का जरूरी है। राहुल गांधी जी ने उस चीज को हाईलाइट कर दिया कि डिबेट डिस्कशन के बगैर कोई बिल पास नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के खिलाफ है। 25% बिल गए 10 साल में आपने, बीजेपी ने 1 घंटे के अंदर पास कर दिया। राहुल गांधी जी का आरोप है डिबेट डिस्कशन होना चाहिए। जुनरकर साहब,
बिल्कुल सर, मैं पहले ही जब भी डिबेट, ये हमारी डिबेट स्टार्ट हुई, जब से मैं वो एक ही लाइन पकड़ के बोला हूँ कि हर बिल पे विरोधी विपक्ष पार्टी के लोग हैं, वहां के लोग हैं, उनको भी पूछो, अच्छे लोग स्कॉलर लोग को मदद के लिए लीजिए, और उसमें से एक अच्छा मंथन करने के बाद कोई चीज सामने आएगी तो वो बिल्कुल निखर के आएगी। आप एक आत्ममुग्ध होके और अहंकारी रूप में से, जैसे भी प्रवक्ता जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बात कर रहे थे, शुरुआत के उनके कुछ वाक्य एकदम अहंकार में लिप्त थे, तो मैं चाहता हूं गए 10-12-15 साल में, 10-12 साल, 15 साल भी नहीं, 10-12 साल में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता से लेकर हर प्रवक्ता एक आत्ममुग्ध और अहंकारी रूप में बात कर रहा है, वो किसी की सुनना नहीं चाहता और कड़वा घूट की बात कर रहे। तो मैं एक छोटा सा मुनावर जी का 1-2 लाइन आपको सुनाता हूं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। आप लोग ये सोचते कि कड़वा घूट में दे दूं, कड़वा घूट किसको दे रहे? जो रोज आत्महत्या कर रहे हैं, जिनको आपने बात किया था कि आपकी आय डबल हो जाएगी, आपको एमएसपी मिलेगा, हर चीज आपके घर में अच्छी तरह से आएगी, जो सपने आपने किसानों को दिए थे, आप उसको ही कड़वा घूट दे रहे थे। आपने 3 जो कानून लाए थे वो किसानों के लिए कड़वे थे, लेकिन आपके उद्योगपति मित्र के लिए बहुत ही ज्यादा पसंदीदा और बहुत ही ज्यादा उपयोग के थे। जमीन के लिए आप कितने इच्छुक है, मैं आपको आपके छोटे से उदाहरण राम जन्मभूमि से दिखाता हूं कि 2 करोड़ की जमीन सुबह 7:10 को सुल्तान अंसारी खरीदते हैं, वो जमीन 7:15 को राम मंदिर ट्रस्ट 16.5 करोड़ में खरीदता है। राम के नाम पे भी ये लोग चंदा चोरी करते हैं। जमीन की चोरी कैसे की जाए इन लोग से बेहतर पूरे देश में कोई नहीं जानता। अभी जमीन बची ही नहीं है, ये लास्ट की जमीन इनके पास है, वक्फ बोर्ड के पास, वहां से भी निकाल के अपने उद्योगपति दोस्तों को किस प्रकार से दी जाए, ये एक ही इंटरप्रिटेशन इनका लोगों के सामने हम दिखाएंगे और दिखाने में कामयाब होंगे। इस तरह से आप किसी चैनल पर और एक सुप्रसिद्ध चैनल पर झूठा आरोप लगाना, ये सही नहीं मैं मानता हूँ। धनंजय जी, कृपया करके इस तरह के आरोप से आप बचिए। आप अच्छे वक्ता है, प्रवक्ता है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन सरकार क्या करने वाली, सरकार ने आप लोग को बताया है क्या? नरेंद्र मोदी जी से आपकी बात हुई है क्या? नरेंद्र मोदी जी किससे बात करते ही नहीं, यही प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में भी किसी से बात नहीं करते। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर गरीबों से बात करते, किसानों से बात करते तो ऐसे कानून नहीं लाते। नरेंद्र मोदी जी अगर लाडली बहना का कानून लाना चाहते थे, लाडली बहना की स्कीमें ये पूरे देश में चलाना चाहते थे, तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली काफी जो लड़कियां वहां आंदोलन कर रही थी, उनके खिलाफ वहां का तंबू उतार के उनके खाने पीने का, वहां से पानी की लाइन तोड़ने का काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा लोगों में जाके लोगों की जिस दिन सुनेंगे ना, वह उनकी मन की बात कहते हैं, लोगों की मन की बात जिस दिन वो बोलेंगे, उस दिन वो एक हाई लेवल के और जो हमारी अपेक्षा है उससे भी बड़े नेता हो जाएंगे। लेकिन धनंजय जुनारकर साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, एक मिनट एक मिनट, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। पांडे साहब, मैं आप ही की बात बोलने वाला हूँ। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बने हैं। ये देश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। लेकिन जुनारकर साहब, जो वक्फ बोर्ड है आज उठ करके किसी भी जमीन को अपनी बता सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज साहब ने इनफैक्ट ये बोला वक्फ बोर्ड को, अगले दिन तुम बोलोगे ये हाईकोर्ट की जमीन भी तुम्हारी है, तो उसके ऊपर तो सर, उसके ऊपर तो तमिलनाडु के मंदिरों पर दावा कर रही है, ये होते कौन है भाई? सर तमिलनाडु का मंदिर, अरे द्वारका का मंदिर। और आपकी बात काटी नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। मैंने आपकी कोई बात काटी नहीं सर, आपकी कोई बात काटी नहीं। मैंने इतना ही कहा है कि जो चेंजेस आने चाहिए वो बिल्कुल आने चाहिए, पर सबको विश्वास में लेके आने चाहिए, उतना ही मेरा पॉइंट है। जेपीसी में सर ये बात निकल के आएगी। इन लोगों ने पिछले चुनाव में जिस तरह का भ्रम, जिस तरह का अफवाह, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा,
जिस तरह का ये इन लोगों ने ये भ्रम अफवाह फैलाकर इस बार लोगों के मन को दिग्भ्रमित किया है, ये इनका सदैव से काम रहा है। और आज भी आपके चैनल के माध्यम से बैठकर ये बात कर रहे हैं कि अपने व्यापारी साथियों को जमीन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, कोई भी बात प्रवक्ताओं को करना चाहिए, तो क्या आपके पार्टी जो भी बातें सच होती हैं वो कहीं न कहीं वो बातें ऑन रिकॉर्ड होती है, वही आपको बोलना चाहिए। जुनरकर साहब, आप पे भी और आपके पार्टी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या आपकी पार्टी ने बोला है कि आपको इस तरह का आरोप लगाए? आप जुनरकर साहब, लगाए तो शिवराज सिंह चौहान जी ने पार्लियामेंट में आरोप लगाया कि डिबेट और डिस्कशन का स्तर नीचा आ गया, इट इज कम डाउन, लोअरिंग द डिस्कशन डिबेट इन पार्लियामेंट। और कल हमने परसों जया बच्चन जी और धनखड़ साहब के डिबेट्स और डिस्कशन भी सुने, जहां जया बच्चन ने डायरेक्ट आरोप किया वो इंडी अलायंस के पार्टनर है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने भी लोकसभा में इस चीज का आरोप, राज्यसभा से, हर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह डिस्कशन का लेवल बहुत कम हो गया है और कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है। हाउ डू यू सी दैट, जुनरकर साहब? सर, भारतीय जनता पार्टी में जो नीचे से नीचे बात करेगा, डिबेट का स्तर नीचे लेके जाएगा, उसकी पोस्ट बड़े से बड़ी मिलेगी। ये गए 10 साल में हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्यपाल अलग अलग राज्यों में काम करते थे, यहाँ भगत सिंह कोश्यारी जी का हमने देखा कि आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने क्या कहा, महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए क्या कहा, सावित्रीबाई फुले जी के लिए क्या कहा, उनको उनके बारे में एक भी बार भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है या आरएसएस की लीडरशिप है, कहीं से कोई एक लाइन का खेद बोलने वाली भी बात प्रसारित हुई ऐसा आपने देखा नहीं। और ये धनखड़ साहब आज की तारीख में, इसके पहले राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, वहां उन्होंने जो अड्डा बना के रखा था, जिस प्रकार से एक भारतीय जनता पार्टी का वहां उन्होंने सभी प्रति सरकार उन्होंने वहां बना के रखी थी, तो क्या राज्यपाल को इस तरह का काम करना सही आपको लगता है? और ये भी कहां से सीख रहे हैं, क्योंकि इनके जो बड़े नेता है आदरणीय मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके जिस प्रकार से बातें करते हैं, उनको देख के ये लोग सीख रहे हैं और उनको देख के ये सोच रहे कि मैं अगर इससे और खराब बात करूंगा तो शायद मुझे और बड़ी पोस्ट मिलेगी। सर, क्या खराब बात करी है बताइए ना। जया बच्चन जैसे कि क्या खराब बात करी है जुनरकर साहब, जरा बताइए। अभी मैंने आपको यहाँ खाली महाराष्ट्र का उदाहरण दे दिया, भगत सिंह कोश्यारी जी का। आपको क्या लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो बात किया था वो बात सही थी क्या? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले 8 साल में शादी हो गई उनकी, वो क्या करते रहेंगे, उनको क्या प्रकार का, मैं टीवी पे बात कर भी नहीं सकता, इस प्रकार की ये लाइनें थी। तो सर ये आपको लगता है वो लेवल पे, तो शैलेश पांडे जी से पूछ लेते हैं। शैलेश पांडे जी, गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में बोल दिया। आप लोगों ने कुछ नहीं कहा सर, आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ नहीं किया। मुझे अभी भी याद है, उस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार और देवेंद्र फडणवीस जी ने उस वक्त अपने वक्तव्य दिए थे इस विषय के ऊपर। और देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, ये हमारे लिए पूजनीय है, आदर्श है हमारे, ये हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए आराध्य देव की तरह है। और इन पे किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी से सभी को बचना चाहिए, सभी को बचना चाहिए। और कोश्यारी जी फिर बाद में क्या हुआ वो इतिहास हो चुका है वो विषय। और इस वक्त जो बात हो रही है ये संसद की बात हो रही है, तो धनंजय जी ने संसद पे बोलना चाहिए। अब पूछा जाए आम और बोले इमली, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। मैं धनंजय जी से पूछता हूँ, बोलिए सर। पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने खड़े हुए, किस तरह का अपमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राहुल गांधी ने किया और राहुल गांधी ने करवाया। मुझे याद है, मैं उस वक्त लाइव टेलीविजन देख रहा था। जो संसद में सभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राहुल गांधी को टोक के बोला कि आप अब विरोधी पक्ष के नेता हो और विरोधी पक्ष के नेता को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आप जिस तरह से लोगों को, संसदों को इशारे में उठकर वेल में जाने के लिए कह रहे हो, पीछे मुड़ मुड़कर आप लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी को अपना पीठ दिखा रहे हो, ये संसद का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, देश का अपमान है। और एक प्रधानमंत्री को अपने विचारों को न रखने देना,
रेल में सतत उनके बातों को रोकने के लिए चीखना, चिल्लाना और हुटिंग करना, ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी कांग्रेस के और इंडिया अलायंस के लोगों ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलने नहीं दिया था? भूल गया क्या ये देश? ये देश की जनता, 140 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी और जिस देश से प्यार करती है, और नरेंद्र मोदी जब देश के हित में बात करते हैं संसद के अंदर, देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए काम करते हैं, आज ये नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे मुफ्त में, आज 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को जिनके घर पर छत नहीं था, घर नहीं था, उनको नया घर बनाने का काम करके दिया। 11 करोड़ लोगों को जिनके पास शौचालय नहीं थे उनको शौचालय बना कर देने का, अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवे, हाईवे, आज देश को एक विकसित भारत की ओर ले जाने का जो संकल्प लेके निस्वार्थ मन से सतत अविरत रूप से काम कर रहे, भारत माता की सेवा कर रहे, ऐसे भारत माँ के सुपुत्र और अद्वितीय योद्धा प्रधानमंत्री का अपमान, जो अभी शैलेश पांडे जी ने कहा राहुल गांधी जी के बारे में, सर आप बताइए, वो बात तो ठीक है, आप जान करके हुटिंग करवा रहे हैं, जान करके चिल्ला रहे हैं, आप तो मोदी जी बोल रहे हैं, उस वक्त आप बोल रहे हैं हाय हाय मणिपुर, ये क्या है? आप विरोधी पक्ष नेता हो, एक जवाबदार व्यक्ति हो देश के, और अब विरोधी पक्ष नेता होने के बाद आप खुद पीठ दिखा रहे हो पीठासीन अधिकारी को। बोलिए ना, आप आदरणीय राहुल गांधी जी का जिस प्रकार से अपमान किया, जिस प्रकार से आपने गोदी मीडिया को उनके पीछे लगा के रखा, अभी भी बाल बुद्धि करके उन्होंने बीच में उन्होंने अपने भाषण में शब्द का उपयोग किया, पप्पू करके शब्द का उपयोग किया। आपके रमेश विदुड़ी जी ने, आपके रमेश विदुड़ी जो सांसद थे गए टर्म में, उन्होंने जो शब्द वापरा था, क्या आदरणीय हमारे यहाँ के पत्रकार, हमारे एंकर वो शब्द याद भी करना चाहेंगे क्या ऐसे शब्द हम लाइव टीवी पे बोल भी सकते हैं क्या वो रमेश विदुड़ी जी ने जो शब्द वापरे, क्या वो संसद की गरिमा संभालने वाले शब्द थे क्या? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था कि ये मौनी बाबा है, रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते रहेंगे, और इतना कुछ कहा कि मैं बोलूंगा तो पूरा शो कम पड़ जाएगा। हमको आपके जैसा किसी की निंदा करके अपने आप को बड़ा नहीं करना है। हम काम करके बड़े होने वाले लोग हैं, हम लोग को काम करना है। आप अच्छी चीज लेके आइए, अच्छा विधेयक लेके आइए, चर्चा कीजिए, और बिना जेपीसी में जाके वो पास हो सकता है, ऐसा कोई काम कीजिए तो हम आपको आपके साथ है, आपको मदद साहब। एक और चीज है, शैलेश पांडे साहब, सुनने वाली बात है, करने वाले राहुल गांधी, स्वतंत्रवीर सावरकर का अपमान करने वाले राहुल गांधी, हिंदुओं को हिंसक कहने वाले राहुल गांधी, मुझे जवाब दो धनंजय जी, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्याएं हुई है, मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को जलाया गया है, भगवान के मूर्तियों को जलाकर मंदिरों से खींच कर हिंदू माँ बहनों के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, हिंदुओं को जिंदा जलाया गया है, इसके बाद भी आप कहते हो हिंदू हिंसक है। आप में दम है तो बोलो मुसलमान। शैलेश पांडे जी, क्या मोदी जी भारतीय सेना को भेज रहे हैं बांग्लादेश? क्योंकि तो सर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट जुनेकर साहब रुकिए। अरे शैलेश पांडे जी, एक मिनट जुनेकर साहब प्लीज। हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा, एक मिनट भारतीय जनता पार्टी अरे के हिंदुओं को जुनेकर साहब, वो बात चली गई, वो बात खत्म हो गई। शैलेश पांडे जी जवाब दीजिए, क्या आप बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करेंगे? नहीं है क्या शैलेश पांडे जी, क्या आप बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद कर रहे हैं? शैलेश पांडे जी, बांग्लादेशी हिंदू इस वक्त बॉर्डर पर है, उसका भी हम निषेध करते हैं। आपने सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म का अपमान किया। शैलेश पांडे जी, क्या हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू जो इस वक्त बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर हैं, क्या बॉर्डर आप खोल रहे हैं उनको अंदर लाने के लिए? शैलेश पांडे जी प्लीज बताएं। जी देखिए अलग अलग तरह से हमारी तो ये मांग है, और खोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? आज जो सीए बना है
इसका मतलब क्या है? सीए भी पड़ोसी सर अभी मर रहे हैं वो लोग, आप सीए की बात कर रहे हैं सर। बॉर्डर के ऊपर इस वक्त बांग्लादेशी हिंदू हैं, डर के मारे वहां तक पहुंचे हैं कि भारत में शायद उनको पनाह मिलेगी। क्या आप उनको पनाह देंगे या नहीं देंगे, ये बताइए। बिल्कुल देंगे। हिंदू जो भी हिंदू प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान आना चाहेगा, हम ऐसे प्रताड़ित, शोषित, पीड़ित हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह, उनको भारतीय नागरिकता भी 25,000 है भी। इसीलिए तो हमने सीए बनाया। और इस सीए का नंगा नाच करके विरोध किसने किया? 25,000 है हिंदू इस वक्त, 25,000 से भी ज्यादा। अरे शैलेश पांडे जी, 25 से 30,000 बांग्लादेशी हिंदू इस वक्त इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं। आप कानून की बात कर रहे हैं, क्या बॉर्डर खोल करके उनके लिए आप कोई कैंप, रेफ्यूजी कैंप वगैरह सेटअप करने वाले हैं या नहीं, या आप वेट करेंगे कि उनको भी मार दिया जाए? शैलेश पांडे जी आपसे पूछ रहा हूं। मैं फिर से एक बार कहता हूं राजीव जी, जो भी प्रताड़ित हिंदू है, शोषित है, पीड़ित है, उनको जो भी भारत आना चाहेंगे, हम बिल्कुल उनको भारत में लेंगे। और उनको हम भारतीय सलमान खुर्शीद, महबूबा मुफ्ती, जिस प्रकार का उन्होंने उपयोग किया जो डिस्क्राइब करना कि बांग्लादेश वाले सीन हिंदुस्तान में भी होगा, और जहां वहां प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस पर लोग आके हंगामा कर दिए, वहीं पर वही हाल हिंदुस्तान का होगा, भारत का होगा। क्या जुनरकर साहब, पहले मैं आपको पूछता हूं, यह सही है इस वक्त में ऐसे बात करना? क्या ठीक है कि वो क्राइसिस यहां पर भी होना चाहिए, होगा? अब वो सिचुएशन यहां पर भी वॉलेटाइल है, क्या स्थिति है क्या वहां पर बांग्लादेश का स्थिति और देश का स्थिति को कंबाइन करना? जुनरकर साहब। नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। आप जो बोल रहे हैं उस प्रकार से, वैसी अपेक्षा से यहाँ कुछ दुर्भावना से कोई वक्तव्य नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कहा है, सलमान खुर्शीद ने कहा। मैं पहले तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा था, आता विश्वात्मा के देवे, पूरी दुनिया के लिए शांति और प्यार और भाईचारा करने वाला हमारा देश है। पंचशील तत्वों का अभी चिल्ला के बात करेंगे, इनको लगता है डायरेक्ट इनको बहुत बड़ी पोस्ट की अपेक्षा ये है। लेकिन सर सलमान खुर्शीद साहब ने कहा है आगे ऊपर किसको, सर सलमान खुर्शीद साहब ने कहा है ये बात दूसरे को बात करने को देने की इनकी इच्छा ही नहीं है। ये डीप में जाके तो बात करके साहब बोलिए ना, सोचना। अरे साहब बताइए तो सही। बोलने ही नहीं दे रहे सर, यही नहीं बोलने दे रहे हैं, संसद में हम इंतजार कर रहे हैं, आप बोलिए तो सही। क्या सलमान खुर्शीद जी को ऐसा वक्तव्य देना चाहिए था जुनरकर साहब? वो उनका निजी वक्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि कहीं भी गलत होना नहीं चाहिए, और बांग्लादेश में भी जो हो रहा है वो भी बिल्कुल इमीडिएट रुकना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जाके बात करना चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि पूरे विश्व में, एशिया खंड में ही, भारत के आजू बाजू में, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, और नेपाल में तो समझो थोड़ा सा लोकशाही के माध्यम से चेंज हुआ उनका सत्ता। लेकिन इस प्रकार का काम क्यों हो रहा है? इस प्रकार की बातें सब सेम आप देख रहे हैं, 6 महीना, साल, 1.5 साल के डिस्टेंस के अंदर अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका बेनिफिट किसको होने जा रहा है? इसका नुकसान किसको होने जा रहा है? क्या इससे शस्त्र परचेस करना और बेचना, ये लाभ किसको होने जा रहा है? क्या वो लेवल की कुछ डिबेट में सोच रहा था कि इसके अंदर कुछ हो, लेकिन इसमें मोदी जी की भक्ति और सब उसमें वही लीनता है, और जमीन का फायदा कहां से होगा, यही चीज देखने को मुझे मिल रही है कंटिन्यूअसली। हमारे सलमान खुर्शीद साहब से जब पूछा गया, वही बात कर रहे कंटिन्यूअसली। थोड़ा सा हट के बात करेंगे तो देश के फायदे की बात कुछ समझ में ही नहीं आई मेरे को। सर जुनरकर साहब, सलमान खुर्शीद जी वैसे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनसे जब दोबारा पूछा गया कि सर ये आपने क्या कह दिया, उन्होंने कहा आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। ऐसा बोला उन्होंने, सलमान खुर्शीद साहब ने, कि एक दिन ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ है ऐसा भारत में भी होने वाला है, ऐसा कहा है उन्होंने। और महबूबा मुफ्ती जी ने भी कहा है। जुनरकर साहब अब आप बोलें प्लीज। हाँ, तो इसका इंटरप्रिटेशन आप ऐसा कीजिए कि किसी स्प्रिंग को आप कंटिन्यूअसली दबा के रखेंगे, आप कामगारों के हित के अंदर फैसले नहीं लेंगे, आप किसानों को दुखी करते रहेंगे, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते रहेंगे, स्टूडेंट के पर्चे 41 टाइम कभी लीक होते हैं क्या? और आप अग्निवीर जैसी फालतू योजनाएं लाएंगे, जो योजनाओं से जवानों का अपमान होगा।
इस प्रकार की काम आप अगर सभी जगह आप अगर दबा के रखने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर कुकर की सीटी कहां से बजेगी, कहां से क्या होगा, प्रतिक्रिया कहां से क्या आएगी, ये कौन सोच सकता है। आज आप और हम अमन की बात कर रहे हैं और यहाँ बैठे हैं और एजुकेटेड क्वालिफाइड एक डिबेट हम कर रहे हैं, लेकिन और अगर 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो क्या सभी लोगों का दिमाग इस प्रकार से शांति से डिबेट करने का है क्या? क्योंकि मॉब की जो साइकोलॉजी है वो 8 साल के बच्चे की जो दिमाग है वैसी रहती है। जब इस प्रकार का मॉब इकट्ठा होगा तो क्या वो करेगा? मन की बात करने से काम नहीं होगा, लोगों के मन की बात सुनने के लिए आपको वहां भेजा है। लेकिन जोनाकर साहब आपसे जानना चाहते हैं, जहां तक बांग्लादेश का प्रश्न है, क्योंकि बांग्लादेश की बात चल रही है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन विद शैलेश पांडे जी। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, आपको लगता नहीं है कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? वहां पे जिस प्रकार मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर नहीं बौद्ध गृह भी तोड़े जा रहे हैं, चर्चेस भी जलाई जा रही हैं, और तो छोड़िए, एंड जेन्युइनली देयर आर आई थिंक ओवर 30,000 हिंदूज एट द मोमेंट एट द बांग्लादेश बॉर्डर वेटिंग टू कम इन। आपको लगता नहीं है कि जिस प्रकार इंदिरा जी ने 1970 में 71 में बॉर्डर खोल दिया था, सबको अंदर आने दिया था और वहां पे कैंप बनाए गए सबके लिए, क्योंकि अगर वो वहीं पर रह जाते उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में सबको मार देते। वही स्थिति आज की तारीख में बांग्लादेश के हिंदुओं की है। तो आपको लगता नहीं है कि भारत सरकार को, मोदी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? जोनाकर साहब, हस्तक्षेप क्या, वो ट्वीट करने की हिम्मत नहीं हो रही उनकी। ऑल पार्टी मीटिंग लेके अगर वो 2 शब्द अगर कड़क बोलते कि ये 24 घंटे में रुकना चाहिए, क्योंकि इनके टेलीफोन के ऊपर यूक्रेन का लड़ाई वहां रुक सकती थी, तो यहाँ बाजू में बांग्लादेश में कोई सुनने को तैयार नहीं हमारा, ये हमको कैसे विश्वास है? उसके लिए गट्स चाहिए और इनके अंदर गट्स नहीं है। ये लोग खाली ईडी सीबीआई वहां भेज नहीं सकते बांग्लादेश में, आपका ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सुनने वाला नहीं है, इसके लिए इनकी दादागिरी खाली यही चलेगी। अगर ऑल पार्टी मीटिंग लाते हैं, बैठते सबके साथ बात करते, कोई डिसीजन करते, कम से कम कोई अच्छा ट्वीट करते, या किसी अपने अच्छे परराष्ट्र मंत्री की भी भूमिका कुछ कड़क नहीं आ रही, परराष्ट्र मंत्री भी चुप है, हर मामले में श्रेय लेने के लिए मोदी जी आ जाते हैं, लेकिन तकलीफ की बाबत में एकदम शांत बैठ जाते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। चुनौकर साहब, कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से एक जो केयरटेकर है उनको भी बहुत बधाई दी, जो नोबेल प्राइज विनर है मोहम्मद यूनुस जी को, और एट द सेम टाइम द सेम ट्वीट में उन्होंने कहा हिंदुओं का रक्षा और माइनॉरिटीज का रक्षा हम चाहते हैं कि आप करें। प्राइम मिनिस्टर सेड, ये तो ठीक है, मगर जो कहाँ इफेक्टिव होगा, 1-2 दिन में आर्मी से भी शायद बात कर रहे हैं, दैट इज जो अनऑफिशियल बीजेपी का कहना, स्पोक्सपर्सन डिस्कनेक्ट हो गया। बट जो एक बहुत बड़ा फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि ये मोदी जी के खिलाफ चाइना, पाकिस्तान और यूएस का एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, ये फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा। क्या फारूक अब्दुल्ला जी शायद इंडिया अलायंस का एक हिस्सा भी है? उन्होंने कहा कि इस चीज को बहुत नजदीकी से देखना, बहुत अटेंटिव तरीके से देखना जरूरी है कि द कॉन्स्पिरेसी दैट हैपेंड इन बांग्लादेश ऑफ ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट माइट हैपन इन इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान एंड यूएस इज वर्किंग ऑन दैट। जोनाकर साहब, एक सीरियस एलिगेशन है कमिंग फ्रॉम ए इंडिया अलायंस पार्टनर कि यहां पर कुछ ठोस कदम यानी देख रेख की जरूरत है। नहीं, ये उनके वक्तव्य के साथ हम लोग सहमत नहीं है, ये उनका अपना वक्तव्य है, वो ये उनकी अपनी सोच है, उनको ये ऐसा क्यों लगा उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया आ सकती है। इतने छोटे से उनके कमेंट के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर विश्व गुरु है, मोदी जी विश्व गुरु है, तो और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है, सब जगह पूरा दुनिया घूम चुके 2-2, 3-3 दिन बार, तो उनको निकालने के लिए क्यों कोई मेहनत करने को जाएगा? अमेरिका ने गद्दाफी और सद्दाम हुसैन के मामले में जो काम किया था, वैसे वो लेवल के प्रकार हमारे यहाँ नहीं, हम डेमोक्रेसी वाले लोग हैं। मोदी जी अगर विश्व गुरु है और वो जाके सब जगह अच्छे रिलेशन बना के आए हैं, तो ये होने की बात तो बिल्कुल हम सोच नहीं सकते। पहली बात तो ऐसी चीज हम लोग खुद ही अपने देश में होने नहीं देंगे और पनपने नहीं देंगे। भाईचारा हमारा कम नहीं होगा, मोदी जी के साथ हमारा कितना भी झगड़ा हो, लेकिन देश के अंदर शांति और प्रगति, भाईचारा कायम रहे, उसके लिए हम बिल्कुल काम करेंगे। तो यहाँ पर एक और सब्जेक्ट है सर, चलिए बांग्लादेश के ऊपर तो दैट्स अ मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, आई होप समथिंग हैपेंस। तो जुनेकर साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, जरा थोड़ा सा पेचीदा सब्जेक्ट है ये, आई विश मिस्टर शैलेश पांडे कुड बी विद अस। जरा सा थोड़ा सा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आया था, वो जो क्रीमी लेयर है शेड्यूल कास्ट में,
वगैरह वगैरह ये सब जो है उसके ऊपर ज़रा कुछ करिए। तो खड़गे साहब ने आज कहा है कि क्रीमी लेयर की बात ला करके शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में आप शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन भी खत्म करना चाहते हैं, ऐसा खड़गे साहब ने कहा है। सर ऐसा क्या है, मतलब आई होप दिस इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जान करके दलितों का जो आरक्षण है उसको खत्म करने की कोई साजिश हो, कोई ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं सर, इसका इंटरप्रिटेशन सर सिर्फ इतना हो सकता है कि दलित कास्ट में, SC ST में अगर कोई पैसे वाला है, सक्षम है, वो आदमी फिर वापस से दलित या जो भी उसकी कास्ट है उसका बेनिफिट लेके आगे न जाए। उसके बदले जो कमजोर है, उसी कास्ट का कमजोर आदमी है, कोई विद्यार्थी है, उसको मेहनत करके उसको जॉब में फायदा हो सकता है, उसको पढ़ाई में कुछ फायदा हो सकता है, वो आगे चला जाए। इतना यही विचार है, वो कास्ट के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और कोई भी उनका वहां से निकालने का विचार नहीं। तो लेकिन उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया मोदी सरकार पे कि शायद वो अब उनकी नजर शायद शेड्यूल कास्ट आरक्षण पर है, कि शायद उसको कम करने की या कुछ और करने की, ऐसा खड़गे साहब ने कहा है कि मोदी साहब की जो सरकार है शायद ऐसा कुछ प्लान कर रही है। आपको कोई खबर है ऐसी? सर मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, आदरणीय खड़गे साहब की ये बात के ऊपर बात रखने की मेरी कोई शक्ति नहीं है सर। You know, Chorga साहब, another thing that you said about unrest, आप कहा कि जो बांग्लादेश में unrest है वो शायद यहाँ पर भी है, बिकॉज ये पेपर लीक्स का है इशू है, एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है, यू गॉट इशू ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस राइज का इशू है, किसान का इशू है। तो ये सब इश्यूज है जिसमें अनरेस्ट है, आम आदमी में अनरेस्ट है। तो क्या ये अनरेस्ट जो बीजेपी का कहना, उनका रिपोर्ट कार्ड है, पीएम किसान इतना 11 करोड़, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, आवास योजना 4 करोड़, उज्ज्वला, आयुष्मान, नल से जल 15 करोड़, तो ये बीजेपी का अचीवमेंट्स का लिस्ट है। तो आपको कह रहे कि ये अचीवमेंट का लिस्ट देखकर आपको अनरेस्ट दिखाई दे रहा है? जोरकर साहब, जो मोदी साहब का लिस्ट है, इनकी भारतीय जनता पार्टी के ये जो जितने बड़े बड़े आंकड़े हैं ना, ये आंकड़ों पे मैं कोई भरोसा नहीं करता हूं। और उनको भाषण करने में और प्रचार करने 24 घंटा वो प्रचार के मोड़ में रहते, उनको अपनी बात करते रहते हैं। सर लास्ट 75 ईयर्स में आपने कितना भी अनरेस्ट हुआ, लेकिन वो अनरेस्ट डेमोक्रेसी के माध्यम से ही उसको जवाब दिया गया है। भारत जो अपने देश के आजू बाजू में सीमाओं में जो लगे हुए देशों में अनरेस्ट है, वैसा अनरेस्ट हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। हमारा अनरेस्ट, हम लोग वोटिंग का बटन दबा के या वोटिंग का थप्पा मार के हम अपना अनरेस्ट बताते हैं। मोदी जी को लोगों ने अनरेस्ट बताया है कि 303 से लेके वो जो 400 पार की बात करते थे, उनको 300 भी होने नहीं दिया और 300 से नीचे आके उनको बैसाखी लेनी पड़ी, 2 अलग पार्टियों की सहायता लेनी पड़ी, तभी इनकी सरकार आई है। ये मोदी सरकार की जगह ये एनडीए सरकार हो गई। तो लोग यहाँ होशियार है, विद्वान है, वो इंतजार करते समय का 1 बार 2 बार 3 बार मौका देके देखते हैं। आदरणीय इंदिरा गांधी जी को भी अनरेस्ट का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में लोगों ने ही उनको फिर चुन के दिया था। तो वो हमारा अनरेस्ट और बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका का अनरेस्ट, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं और डेमोक्रेसी के माध्यम से हमारा अनरेस्ट लोगों को दिखाई देगा। आई एग्री विद यू सर। यहाँ पर मुझे कहना पड़ रहा, सॉरी प्रदीप जी, मैं बीच में आ रहा हूँ। हम लोगों को बार बार ऊपर वाले का और हमारी देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। वी आर वेरी लकी टू बी इन इंडिया। भारत देश जैसा कोई और देश नहीं है सर। आसपास देखिए ना, पाकिस्तान, जैसे प्रदीप जी ने नाम लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां पर सब कुछ, चलिए मैं ये नहीं कहूंगा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहां पर कोई प्रधानमंत्री जी के घर में नहीं घुसता। यहां पर उठा के उनकी प्राइवेट चीजों को उठा के कोई फेंकता नहीं है। फौज जो है हमारी, आज तक हमारी फौज ने, आई एम प्राउड टू से, आज तक हमारी फौज ने कभी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया है। द इंडियन आर्म फोर्सेस हैव नेवर एवर इंटरवीन इन the democratic process over here, which I think is fantastic. We live in a great country, sir. I think we must thank our founding fathers for the kind of base and foundation that they built. आप पंडित नेहरू की बात ले लीजिए, आप बी आर अम्बेडकर साहब की बात ले लीजिए, सरदार पटेल की बात ले लीजिए, मौलाना आज़ाद की बात हो, रफ़ी अहमद साहब हो, बाकी जितने भी लोग, आचार्य कृपलानी हो, सब लोगों ने मिलकर के जो भारत की रचना करी, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर के एम मुंशी,
इन सब लोगों ने जो भारत की रचना करी और भारत की जो नींव रखी, उसकी वजह से हम लोग आज भी कायम हैं। जुनेकर साहब, क्या आप एग्री करते हैं मुझसे या नहीं, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बोला बिल्कुल 100% सच बोला आपने। और आज हम लोग बैठ के डिबेट में शांति से बात कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ भी हम हमारा मत रख रहे हैं। भले हमारा मत एक नहीं हो पा रहा, हमारा मत के अंदर जो भी अलग परिवर्तन होना चाहिए, हमारे दोनों की अपेक्षा अलग अलग होने के बावजूद हम लोग एक अच्छी विचारधारा को लेके और डेमोक्रेसी के अंदर ही क्या हम अच्छा चीज लेके आ सकते हैं, ये विचार कायम रख के हम काम कर रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबके उदाहरण देखने के बाद भी और इतने करीब होने के बावजूद हम लोगों के मन में वैसा विचार कभी नहीं आता कि हम इस प्रकार से काम करें। और जिस प्रकार से आपने कहा कि राजकीय हस्तक्षेप नहीं किया उस सेना ने, सर वैसे ही सेना के बंदूक से कभी भी सामान्य आदमी की और उसका बंदूक की नोक कभी भी नहीं चली 75 साल के अंदर। तो सर ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और कितनी कोशिशें होती रही कि डेमोक्रेसी से हटके या दंगे करा के या कुछ भी करा के, तो लेकिन हमारे लोग सब समझदार हैं और डेमोक्रेसी को मानते हैं और भाईचारा, बंधुभाव सब जगह बिल्कुल कायम है। कितना भी झगड़ा होने दो, हमारी राजनीति खराब नहीं है। और एक दूसरे को मिलना और बात करना और बातों से ही समस्या हल करना, ये हमारा काम आज की तारीख 75 साल में भी, आज की तारीख में भी हो रहा है। इसके लिए आज और हम और आप शांति से बैठ के बात करने की एक लोकशाही डेमोक्रेसी की प्रक्रिया संभाल रहे हैं। जुनेकर साहब, महाराष्ट्र में स्थिति देखिए, क्या आपको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जी, महायुति, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी आपको कोई चांस दे रहे, एमवीए को कोई चांस दे रहे? बिकॉज दे आर सो कॉन्फिडेंट। लाडकी बहन स्कीम, लाइन के लाइन, कतार के कतार, 17 अगस्त को 2-2 इंस्टॉलमेंट लोग दे रहे। अजित पवार जी भी छाती तान के ला रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी भी एकदम थपथपा के कह रहे हैं कि देखिए 2-2 इंस्टॉलमेंट बहन को देने वाले हैं। लाड़का भाऊ 10 लाख बच्चों को, स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स को 10,000 रुपया, 8,000 रुपया डिप्लोमा होल्डर्स, 6,000 रुपया 12th पास, अन्नपूर्णा योजना, 3 सिलेंडर फ्री महिलाओं के लिए, फ्री एजुकेशन फॉर हायर एजुकेशन इन फॉर गर्ल्स। तो गुलाबी रिक्शा, अजित पवार का पेट, वो गुलाबी जैकेट भी पहन के आजकल अजित पवार जी जो जन सम्मान यात्रा उसमें निकल पड़े हैं। तो क्या चांस है एमबीए का, क्या चांस है, कैसे आप करोगे? या तो रोज आपका झगड़ा चल रहा है शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, सीएम कौन बनेगा? जुनेकर साहब, सर हमारा कोई झगड़ा चल नहीं रहा, हमारा सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है। और आदरणीय अजित पवार जी के बारे में आपने कहा, उन्होंने कोई कंपनी रखी हुई है, उनके मार्गदर्शन से वो काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से उनकी यात्रा, ड्रेसिंग और सब कुछ हो रहा है। वो आनंद मंगल यात्रा, जन सम्मान यात्रा क्या क्या कर रहे हैं, करने दीजिए। मैंने आपको लोकसभा में भी पहले भी बताया था कि क्या इन लोग की अवस्था होने वाली है। लोकसभा के पहले भी बहुत कुछ कर रहे थे और आज भी बताता हूं, आज भी आप ये लॉक करके रख दीजिए। ये कम से कम 100 और मैक्सिमम 125, ये तीनों पार्टी का, ये एमएलए का ये आंकड़ा है। आप ये पक्का करके रख दीजिए। और आप मेरे से, हम आगे भी इस पे बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा में मेरी बात झूठ नहीं थी। ये बात मैं आपको वापस एक बार कंफर्म करता हूं। जी, लोकसभा में आपने कहा था और हम लोगों ने आपकी बात मानी नहीं थी, और आपने ये कहा था कि यही होने वाला है। तकरीबन उतना ही हुआ, थोड़ा सा कम पड़ गए आप, जरा थोड़ा सा कम पड़ गए, लेकिन फिर भी इट वाज गुड, ऐसी बात नहीं है। और वो भी शायद हो सकता है कि कोर्ट में गए हैं 1-2 सीट्स को लेकर के, शायद फैसला आपके फेवर में आ जाए, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल सर, जैसे हमारे रविंद्र वाइकर साहब जो हैं वो 48 वोटों से जो जीते हैं, वो सामने मतलब कीर्तिकर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये तो गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे 2-3 और जगह हैं जहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, सुनने में आया। लेकिन फिर भी, जुनेकर साहब, जो प्रदीप जी ने असली सवाल पूछा आपसे वो ये है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बड़ा फर्क होता है सर। विधानसभा का चुनाव के लिए लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं सर। आप विधानसभा, पंचायत समिति, आपका महानगर पालिका, सभी चुनाव इन्होंने रोक के रखे। लोग सोच रहे कि एक बार हमारा टाइम आने दो तो बटन कैसे दबाना है और कहां दबाना है हम याद करेंगे। ये लोग मिनिमम बोला 100, मैक्सिमम 125, 126 लाते इनको पसीना आने वाला है सर। इन लोग का सुपड़ा साफ है। अजित दादा पवार के तो एमएलए आने ही नहीं वाले हैं।
और ये एकनाथ शिंदे जी के थोड़े बहुत 20-25 यहाँ अगर आ गए तो वो अपने आप को खुशियां मनानी चाहिए। तो और मतलब पवार साहब भारतीय की जो जनता पार्टी, प्रेडिक्शन है, हाँ पवार जी, साहब की जो भविष्यवाणी है 155 के करीब आपकी जो आएंगी सीटें, वो तकरीबन वैसा ही होने वाला है, 155 और 160 के बीच में। सर हम सरकार बना लेंगे, इतना मैं आपको बता सकता हूं कि सर हम लोग सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे और हमको बिल्कुल आसानी से सरकार बनाने मिलेगी इस बार, ऐसा विश्वास है। लेकिन एक चीज तो है, जनता प्रदीप जी, एक चीज तो है, इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व ने सर दांतों तले लोहे के चने चबा दिए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को कभी सुना नहीं था कि वो बिल पेश करें पार्लियामेंट में और उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ ऐसा। इट हैज गॉन टू द जेपीसी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने कुछ पेश किया हो और उसके बाद उसको रेस्टोर कर दिया हो, कोई चीज़ हटाई हो और उसको रेस्टोर कर दिया हो। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंडेक्सेशन के साथ जो था, उन्होंने इंडेक्सेशन निकाल दी थी, उसको वापस लेकर आना पड़ा बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम मिस्टर राहुल गांधी एंड ऑफ कोर्स मिस्टर अखिलेश यादव। और वक्फ बोर्ड के मैटर पे भी यही हुआ है। तो लिहाजा धनंजय जुनेरकर साहब, अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के जितने सलाहकार हैं वो काफ़ी अच्छे लोग हैं और जितने लोगों को जाना चाहिए था शायद सब चले गए, लग रहा है मुझको। बिल्कुल बिल्कुल सर, जितने गड़बड़ करने वाले थे सब दूर है, सभी अभी अच्छे लोग हमारे साथ है। और आप लोग जैसे विद्वान पत्रकार हमको मौका देते हैं, मैं उनको सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अगर नहीं हो तो फिर हमारा कोई नहीं है। धनंजय जुनेरकर साहब, महाराष्ट्र में वापस आता हूं। धारावी प्रोजेक्ट आज फिर आपके गले के हड्डी बन रहा है, जहां उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि विल फॉर्म द गवर्नमेंट, विल थ्रो अडानी आउट, अडानी जी को बाहर फेंकेंगे इस प्रोजेक्ट से। और राहुल गांधी जी ने मेंटेन, हमेशा अंबानी के शादी में गए और वो डिस्टेंस राहुल गांधी जी ने मेंटेन, पूरे फैमिली मेंटेन किए। बट शरद पवार जी एकनाथ शिंदे जी को मिलने गए थे और पूरे अफवाह चल गया कि अडानी के धारावी प्रोजेक्ट के लोग वहां पर थे। और शरद पवार साहब का और अडानी जी का मित्रता बहुत गहरी है और प्रसिद्ध मित्रता उनका, एवरीबडी नोज कब से उन लोग साथ में। तो ये आपका गले का अड्डा, बिकॉज वोकल है एब्सोल्युटली। राहुल गांधी एकदम ठोस है, एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट कि ये गलत, हम इनके साथ हम जाएंगे नहीं, या अडानी अंबानी के साथ है। और दूसरा, उद्धव ठाकरे जी ने कहा फेंक दूंगा, मगर शरद पवार जी गले मिलने वाले लोगों में से हैं। कैसे आप करोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे मिलन होगा एमबीए का? सर आदरणीय शरद पवार साहब सभी साहित्यिक, सभी उद्योगपति, सभी अच्छे लोगों के लिए, अभिनेताओं को, सभी को मिलते हैं, अच्छे भाव से मिलते हैं। और आप ये देखिए कि वो मीटिंग की खाली ये एक ही लाइन बाहर आई है कि ये प्रोजेक्ट के लिए ये डाली हुई लाइन है, ये न्यूज के पीछे की मैं ये चीज को मानता नहीं हूं। और आदरणीय पवार साहब को मालूम है कि अडानी के लिए लोगों का क्या प्रक्षोभ है, वहां की धारावी की जनता कितने प्रक्षोभित है, अडानी के प्रोजेक्ट के विरुद्ध है। तो आदरणीय पवार साहब जन नेता है, लोक नेता है, वो जानते हैं कि वहां क्या होना चाहिए। और अडानी ये जमीन के बदले दूसरी भी काफी जमीनें अलग अलग मांग रहे हैं, वो जमीन भी बहुत महत्वपूर्ण जमीनों की डिमांड हो रही है। तो ये जमीन लेके, यहाँ का टीडीआर लेके, फिर बाहर आपको एक्स्ट्रा जमीन चाहिए, ये सब आपको क्यों चाहिए? तो ये सब चीजों का बैठ के विचार किया जाएगा और उसमें से जो बेस्ट निकलेगा वही होगा। हम लोग मन की बात नहीं करते, हम लोग सबका सुन के लेके बात करते हैं। तो आदरणीय राहुल जी, आदरणीय उद्धव जी, आदरणीय पवार साहब सब बैठ के धारावी की जनता के लिए जो बेस्ट है उसके ऊपर विचार करेंगे और जो अच्छा होगा वो करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है सर। लेकिन जुनेरकर साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, भाई गौतम अडानी साहब हमारे ही है ना, हिंदुस्तानी है, मतलब वो बाहर के थोड़ी हैं, पाकिस्तानी थोड़ी हैं सर, अमेरिका के थोड़ी हैं। अब मुकेश अंबानी साहब हो गए, गौतम अडानी साहब हो गए, शशि रुइया जी हो गए, हमारे गौतम सिंघानिया साहब हो गए, कुमारमंगलम बिरला जी हो गए, वो साउथ के कौन है सर, वो अपने यूनाइटेड सीमेंट्स वाले जो एक ज़माने में वो चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हुआ करते थे, वो जितने भी इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जैसे हमारे असीम प्रेमजी साहब हो गए विप्रो वाले, सर सब इंडियंस ही है ना, हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान का भला ही कर रहे हैं ना सर। और कोई भी बिजनेसमैन होगा, मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेसमैन होगा हर चीज का, हर व्यवस्था का, हर कानून का एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। आज अगर अडानी जी को लग रहा है कि मुझे एडवांटेज लेना चाहिए, क्यों नहीं लेंगे सर?
लेकिन उनको बाहर निकालने का क्या मतलब हुआ, मेरी समझ के बाहर है। व्हाई दिस एनिमोसिटी, मतलब ये कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है गौतम अडानी जी के साथ। नहीं देखिए, कोई भी अडानी जी को अगर बाहर निकाल के अगर कोई आता है तो कोई भी दूसरा भी व्यापारी ही आएगा और वो हिंदुस्तानी ही आएगा। आप देखिए, इसके पहले इंडियन एयरपोर्ट के ऊपर जो जेपी इंफ्रा का जो था वो कैसे चला गया, एनडीटीवी चैनल कैसे चला गया। ये 5% लोगों के हाथ में 95% लोगों के भूख का कंट्रोल देना, ये बहुत भयंकर चीज है। ये मैं मानता हूं। और भी अपने यहाँ हम चाहते हैं कि अडानी जी जैसे और भी पैसे वाले बने कम समय में। ये आदमी 17 नंबर से लेके कौन से नंबर पे आगे आ गए, हम उसको शुभेच्छा देते हैं। लेकिन और भी ऐसे आदमियों के घर पे अगर लक्ष्मी जाती है तो उसमें गलत क्या है? तो कहने का मतलब ये हुआ आपका कि अडानी जी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है? नहीं, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के खिलाफ नहीं है सर। हमारा पार्टी की विचारधारा ये ऐसी है कि हम सबको लेके चलते हैं, सहानुभूति, भाईचारा, प्रेम, शांति। सर ये पहला पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था अडानी जी को, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त ही मिला था, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक कि आपके मुख्यमंत्रियों का प्रश्न है, अडानी जी की बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं सीतारमैया साहब के साथ, उधर रेवंत रेड्डी साहब के साथ, अब उधर हिमाचल प्रदेश में भी मिलके आए हैं। तो मतलब आपके मुख्यमंत्री तो मिल रहे हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से। गहलोत साहब का तो बहुत गहरा संबंध है। तो मैंने कहा सर कि उद्योगपति हमारे कोई दुश्मन नहीं है, पर लेकिन हम ये बोल रहे हैं ना सर कि 5% लोगों के हाथ में 95% लोगों की भूख का कंट्रोल देना, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो क्या हम अलग अलग लोगों में संपत्ति का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जैसा प्रदीप जी ने कहा, आपके आसपास के जितने लोग हैं ना, वो सब इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो किस तरीके से आपको करने देंगे, सोचने वाली बात है सर। बहुत आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ये शरद पवार साहब हो गए, आपके जनाब क्या नाम है इनका, अखिलेश यादव जी हो गए, ये सब लोग इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। ममता बनर्जी हो गई। तो आप खुद देखिए, सब लोग अंबानी साहब की शादी में आए थे। एक अकेले गांधी परिवार को छोड़ करके आपके जितने भी नेतागण हैं आसपास फिर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आपको बहुत ही केयरफुली चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, हम चलेंगे। और मुझे भी इंटरेस्ट है, इसका एंड कहाँ जाता है वो देखने में मुझे भी इंटरेस्ट है सर जी। क्या राष्ट्र हित में फिर भी राष्ट्र हित में कांग्रेस हमेशा रोड़ा कर दिया है। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, वहां पर आपने टांगड़ा दिया। ट्रिपल तलाक है, आपने कहा मुस्लिम के खिलाफ अत्याचार है। अब वक्फ बोर्ड के जो है निर्णय, उसमें भी थोड़ा आपको नाराजगी है। मुस्लिम अपीसमेंट डे कब जाएगा? जो बीजेपी का आरोप है आप पर जुनरकर साहब, मुस्लिम अपीसमेंट से आप बाज नहीं आएंगे। यू वांट मुस्लिम वोट्स, उसके लिए आप कुछ भी सहेंगे और कुछ भी देश हित, इवन नेचुरल जस्टिस वाले चीजों में, शाह बानो वाले केस में जिस प्रकार से हुआ, कांग्रेस एक्सपोज इटसेल्फ where appeasement politics is concerned. सर हम इतना ही चाहते हैं कि जो पुरानी अगर हमने कोई गलती की होगी तो वो इतिहास है, लेकिन अगर आज की तारीख में कोई अच्छी चीज हो रही है तो विचार पूर्वक होनी चाहिए। हमारे पास वो लेवल के स्कॉलर्स है, वो लेवल के एमपीज है जो अच्छी पढ़ाई करके आए हुए, फॉरेन से अच्छी पढ़ाई करके आए हुए अनुभवी लोग हैं, उनका भी आप विचार लीजिए। जेपीसी में से आने दीजिए ना, जेपीसी हमारी है। जेपीसी में कौन से पाकिस्तानी लोग बैठे हैं? आप और हम लोग ही बैठे हैं ना, जो संसद में बैठे वही लोग वहां बैठे हैं। एक अच्छी कमिटी एक अच्छा विचार करके वहां से अगर कोई सब्जेक्ट लेके आती है, कोई अच्छी चीज और डालने की जरूरत हो शायद स्ट्रिक्टली, तो वो नई चीज वहां मिल जाए और फिर वो चीज उसमें डाल के जो आपने हमने सोची नहीं, इन्होंने सोची नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं मिल जाए तो उसके बाद वो चीज आने दीजिए ना। आपको क्या है कि किसको पूछना नहीं है। एक बात तो ठीक है, आज की तारीख में आप लोग जो भी कर रहे हैं उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। भले वो आप ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रभाव तो पड़ रहा है। जैसे खड़गे साहब की शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के ऊपर, दलित रिजर्वेशन के ऊपर जो स्टेटमेंट है, हर जगह पे हाहाकार मच गई। आज की तारीख में आप जहाँ पर भी जाएंगे दलितों के बीच में ये बहुत बात चल रही है कि देखो ये दोबारा कुछ करने वाले। पिछली बार आपने संविधान खतरे में बोला था, इस बार आरक्षण खतरे में, वो आप लोगों ने शुरू कर दिया है। और उसके अलावा अभी मुसलमान खतरे में एक बार फिर शुरू हो गया है वक्फ बोर्ड को लेकर के। तो अभी जो भी कर रहे हैं आप, चल रहा है, मतलब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो आपका मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, ज्योतिष के हिसाब से लग ऐसा रहा है कि आपके सितारे बहुत अच्छे हैं। गुड टाइम, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका सब कुछ। अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे।
चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच जुनाकर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, जय हिंद, जय बहुत अच्छा महाराष्ट्र। लगा आपसे। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र, भवानी, जय शिवाजी, वंदे जय मातरम, भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। I think the very, very sincere man, this Very, very advocate, very, very Junakar sincere. साहब। Yes, yes. and इन्हीं लोगों के कारण राहुल गांधी जी 54 से लेके 99 तक पहुंचे थे। I, The hard work of all these people. and I think it will be 100 now. Yes, 101, yes. 100 हो जाएगा सर अभी वो लद्दाख और वो- सांगली। नहीं, प्रियंका गांधी जी जीत जाती है वायनाड Yes, से। yes. क्योंकि अभी तो उनकी एक सीट काउंट हो रही है ना। Correct, correct. जनाब राहुल गांधी जी की। Yes, yes. 2 सीट तो काउंट नहीं हो रही, उनकी Yes, तो yes. सिर्फ रायबरेली काउंट हो रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एट द मोमेंट वायनाड इज अनरिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि वो सिर्फ रायबरेली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज देयर इन वायनाड एंड एवरीबडी इज होपिंग दैट देयर विल बी अ वेरी गुड पैकेज। I hope not only will there be a very good package, I hope the Prime Minister will also impose strict laws with regard to the Western Ghats, and the Gadgil Commission report's recommendations will be strictly adhered to. I hope it happens, Pradeep ji. Otherwise, we'll actually lose Kerala. I'm not joking. That part of Kerala will actually go. Most of Western Ghats, I mean, if you see places like Sindhudurg, if you see the entire जो Western Ghats है, अब actually it is being suffering continuously. जो भी रेनी सीजन हो या अलग अलग सीजन हो, you have all kinds of casualties of जी। landslides and Wayanad definitely sensitive areas में है, but across the entire western belt That's right. it's a very very ecological fragile area. जो मतलब यहाँ के कोंकण से शुरू होता है Yes, yes. और सीधा मलाबार कोस्ट तक जाता है, एकदम तो वो पूरा एक इकोसिस्टम है। हम भले उसको अलग अलग नाम दे दें, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम। उसको हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना है सर, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक महर्षि परशुराम, दैट इज द मैसेज दैट ही वाज ट्राइंग टू सेंड टू एवरीबॉडी, कि यू शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द अर्थ, यू कांट डू दिस। हम लोग क्या कर रहे हैं प्रदीप जी, जो अनट्रैमल्ड, अनकंट्रोल्ड, कंप्लीटली एंड टोटली अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो हर जगह पे की गई है, उसकी वजह से आज की तारीख में हमें वायनाड देखने को मिला है। आप देखिए पूरा का पूरा आसपास, अब जो रिपोर्ट आ रही है, आसपास जो पूरा जंगल था जिस पर जो हिल साइड्स ऊपर से नीचे आई, वो पूरा काट दिया है। इट हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। हाउ डू यू एक्सपेक्ट द हिल्स टू रिमेन इन प्लेस? बिकॉज सर वेस्टर्न घाट्स में द हिल्स आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग। आप देखिए ना, कोंकण रेलवे में बारिश के दौरान रेलवे बंद करनी पड़ती है बिकॉज देयर आर लैंडस्लाइड्स। So these hills, they are not those strong kind of hills, where once you dig through them, they will remain in place. They don't. They keep shedding, and when they keep shedding, you need trees to hold the soil together. You need those roots. क्या होता है, लोग ये, I'm so sorry, I must tell our viewers, जब आप कोई पेड़ काटते हैं ना, पेड़ की जड़ें जो हैं उसके नीचे, they go for miles. पेड़ की जो रूट्स हैं, इट इज नॉट एज इफ दे आर कन्फाइंड ओनली टू दैट एरिया, दे गो फॉर अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे, 3 किलोमीटर्स अवे, 4 किलोमीटर्स अवे, एंड दे होल्ड द सॉइल टुगेदर। जब आप पेड़ काटते हैं, द रूट्स ऑल्सो डाई। उसके बाद मिट्टी को इकट्ठे रखने का जो जरिया है, वही आप खत्म कर रहे हैं। दैट्स व्हाट द गाडगिल कमीशन सेड वेरी क्लियरली, प्लीज डोंट डू दिस, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन। And there has to be responsibility, accountability at all levels. That's right. Right from municipal level to the central level. Because आज जिस प्रकार से गाडगिल जो आप बात कर रहे हैं, committee report and all, they themselves said that politicians across spectrum, they are holding, some are holding some hills, कोई mining किस तरफ कर रहा है, every political party, whichever place, पूरे the whole belt in the Western Ghats and down south, everybody politically जो भी थोड़ा उनको हक है, वो एक एक घाट्स और एक एक माउंटेन या एक एक हिल अपने पास कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। Now until there is responsibility and accountability at all levels, that yes, this is ecological fragile and we should stop the commercial exploitation, mining in these hills or commercial activities in these particular hills and these ghats. तो जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं, a sense of responsibility among all stakeholders concerned, तब तक this erosion is not going to stop. This fragile environment का exploitation and thereafter जो calamities हम लोग देख रहे हैं, वो is not going to stop unless we have sort of
accountability and acceptability of responsibilities at all levels. प्रदीप जी, अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक क्या हो रहा है वही दोबारा होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या है, वायनाड में डिजास्टर हो गया, पता नहीं कितने लोग मर गए। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दी डेथ टोल। आई थिंक 500 The whole area was submerged. flooded with mud. Yes, mud yes. came down. अभी 1-2 साल के बाद हर एक कोई भूल जाएगा, उसके बाद दोबारा वैसे का वैसे ही शुरू हो जाएगा, उसके बाद वील वेट फॉर द नेक्स्ट डिजास्टर। हमेशा यही होता है, जब डिजास्टर होता है तब एकदम लोग जाग जाते हैं, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है उसके बाद एक तो रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के काम में सब लोग लग गए, और उसके बाद जब वो खत्म हो गया, चलो भाई इनॉग्रेशन हो गया, स्कूल वापस आ गया, ये आ गया, ट्रिब्यूट टू ऑल दोस पीपल हु डाइड एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इन द नेक्स्ट 6 or 7 years there will be one more disaster, because some other politician is going to get in touch with some other industrialist or financier and he is going to exploit one more hill. That is what is going to happen. And in places like Uttarakhand, this is a regular phenomenon. जी। People have become used to it. बोले कि आप बारिश हो गए तो ये सब जाने वाले हैं. People go back and watch all the things flowing out of the water. That's right. जो buildings है, hotels है, घर है, वो they watch and they think हाँ गए वो गए. तो it become a part of life for them. कि आप exploit करो. प्रदीप जी, आपको याद होगा and see this calamities have happened. जब 3 साल के लिए हम लोगों ने गंगा के ऊपर इतना बड़ा अभियान चलाया Yes, था, तब हम लोगों ने कहा था भैया उत्तराखंड में इतनी सुरंगें मत बनाइए, उसको जो ऊर्जा खंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर मेकिंग इट सिट ऑन अ पाउडर केक, on a gunpowder keg, one day it will blow up, and that's exactly what seems to have happened. Now, right now with us,